Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to practice the PYQ for झारखंड PGT English. यानी कि हम लोगों ने 2017 के PYQ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है in a very detailed manner. So in today's class, we are going to practice few more questions which have been asked in the previous year. यानी कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. एंड वन थिंग मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा कोर्स है फॉर झारखंड पीजीटी फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश, ये 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. एंड अगर आप ये कोर्स को 21 तक परचेज करते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 2,999. एंड 21 के बाद अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं then you have to pay 3,999. So if you want to just enroll to this course, use the coupon code that is off 1000 to get 1000 rupee off. And in this course we are going to provide you daily 3 to 4 recorded classes. We are going to give you live doubt clearing sessions and PDFs, and most importantly MCQ test. MCQ tests are very important for your evaluation, and in this course we are going to provide a proper MCQ test. So if you have any query you can just call on the given number. And अगर आपने अभी तक लक्ष्य एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है then the link is given in the description box. So now coming to the question, that is question number 31. हम लोगों ने already question number 30 तक प्रैक्टिस कर लिया है and this is the question number 31. So now coming to the question, who succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850? Who was that poet who succeeded William Wordsworth as a poet laureate in 1850? So it was Lord Alfred Tennyson. Lord Alfred Tennyson ने William Wordsworth को succeed किया था as a poet laureate in 1850. Alfred Tennyson, he was a Victorian poet. You have to just remember. And William Wordsworth, he is a romantic poet. ठीक है. So it was Lord Alfred Tennyson who succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850. So now coming to the next question, that is, which poem of T.S. Eliot was made from the unused materials of Murder in Cathedral? T.S. Eliot का वो कौन सा पोएम था which was made from the unused material of Murder in Cathedral? तो मैं Murder in Cathedral के बारे में बता दूं कि ये जो है T.S. Eliot का वर्ड्स ड्रामा है. ठीक है, T.S. Eliot का ये वर्ड्स ड्रामा है, याद रखिएगा. एंड कौन सा पोएम था वो? क्या वो द वेस्टलैंड था, क्या वो द लिटिल गिडिंग था, या फोर क्वार्टेट्स था, या फिर बर्ट नॉर्टन था? सो द आंसर इज बर्ट नॉर्टन. यानी कि बर्ट नॉर्टन वाज द पोएम व्हिच वाज मेड फ्रॉम द अनयूज्ड मटेरियल्स ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल. एंड मैं बर्ट नॉर्टन के बारे में बता दूं कि इट वाज जस्ट द फर्स्ट पोएम ऑफ Eliot in 4 quartets. ठीक है, it was the first poem of Eliot which was in 4 quartets. So you have to just remember. अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं then you can just note it down. So the answer is Bert Norton, which was the first poem of Eliot in 4 quartets. And मर्डर इन कैथेड्रल जो है वो टी.एस. एलियट का वर्ड्स ड्रामा था. एंड वन थिंग मैं बता दूं कि टी.एस. एलियट ने ये जो बर्ट नॉर्टन पोएम है वो कब लिखा था? वाइल वर्किंग इन मर्डर इन कैथेड्रल. वाइल ही वाज जस्ट वर्किंग इन द मर्डर इन कैथेड्रल, तो उन्होंने इसी बीच बर्ट नॉर्टन को भी कंपोज किया था. सो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि ये अनयूज्ड मटेरियल्स ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल से बना है. सो इट वाज बर्ट नॉर्टन. Now coming to question number 33, that is, the experience in the prelude begins in sensation and ends in, क्या होगा आंसर इसका? prelude में begin तो experience से होता है but end किस में होता है? So the answer is thoughts. ending होता है thoughts में. ending होता है thoughts में. prelude के बारे में मैं बता दूं कि prelude जो है वो 1850 में लिखा गया था in 14 books.
प्रिल्यूड 14 बुक्स में था, 1850 में लिखा गया था, एंड इट वाज जस्ट रिटन, इट वाज जस्ट पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद प्रिल्यूड पब्लिश किया गया था बाय हिज वाइफ मैरी हस्टिंसन। एंड मैं बता दूं कि प्रिल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब स्टार्ट किया था, जब वर्ड्सवर्थ सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स के थे, तब उन्होंने प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था, यानी 1798 में इन्होंने प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था, तब वो सिर्फ 28 ईयर्स के थे, ओनली 28 ईयर्स। ठीक है, एंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस वर्क में, एंड इसीलिए प्रिल्यूड को द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। इसका जो एक और टाइटल है, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। एंड इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ठीक है, इसमें वर्ड्सवर्थ के प्रॉपर पूरी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज यंगर डेज टू कंक्लूजन, एंड 14 बुक्स में है ये। सो द आंसर इज द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, दैट इज द सेंट्रल थीम इन द नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर आर डैश एंड डैश। तो जूड द ऑब्सक्योर को किसने लिखा था? इट वॉज थॉमस हार्डी, इट वॉज थॉमस हार्डी। एंड कब लिखा था? 1895 में इन्होंने जूड द ऑब्सक्योर को लिखा था। एंड इस नॉवेल का थीम क्या है? तो इस नॉवेल का थीम है रिलीजन एंड मोरालिटी। इस नॉवेल का थीम है रिलीजन एंड मोरालिटी। ठीक है, इसमें कैरेक्टर जो है जूड फॉली नाम है उस कैरेक्टर का, एंड वो क्या है, उसका ड्रीम है स्कॉलर बनना, यानी एजुकेशन उसका मेन ड्रीम होता है इस नॉवेल में। एंड वो बताया गया है कि वो कैसे अपने इस ड्रीम को फुलफिल करता है, एंड क्रिसमस में वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपना एजुकेशन पूरा करना है। सो एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं बता दूं कि ये थॉमस हार्डी का लास्ट वर्क था, यानी जूड द ऑब्सक्योर ये जो है ये थॉमस हार्डी का लास्ट वर्क था। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, that is Shakespeare observes the three unities, that is dash dash diligently in the Tempest. Tempest के बारे में मैं बता दूं, most probably it was the last play of Shakespeare. most probably कहा जाता है कि ये टेम्पेस्ट जो था ना, ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले था। एंड थ्री यूनिटीज क्या होते हैं? थ्री क्लासिकल यूनिटीज, जिसको हम लोग जिस नाम से हम लोग जानते हैं, द थ्री क्लासिकल यूनिटीज आर टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, तो थ्री क्लासिकल यूनिटीज है, द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इसके बारे में क्या बताया गया है? पहले तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा टाइम, प्लेस एंड एक्शन, बिकॉज यहाँ पे थ्री यूनिटीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम जानते हैं कि थ्री यूनिटीज में टाइम, प्लेस एंड एक्शन ही होता है। सो टाइम के बारे में यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा वो टाइम का क्या फुलफिलमेंट है कि वो एक यूनिटी को फॉलो करता है। सो टाइम रहना चाहिए 24 आवर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 24 आवर्स रहना चाहिए। प्लेस एक ही रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, प्लेस का चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड एक्शन रहना चाहिए वन प्रिंसिपल एक्शन। ठीक है, वन एक्शन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री क्लासिकल यूनिटीज, दैट इज यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यानी टाइम होना चाहिए 24 आवर के अंदर वो काम, वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए। प्लेस एक ही रहना चाहिए, एंड एक्शन जो है वो एक प्रिंसिपल एक्शन रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज अभी ये हो रहा है फिर दूसरे टाइम में वो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम अभी वेसेक्स में है तो हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। वी हैव टू जस्ट if we want to follow the three unities, we have to follow these things also। and टाइम जो है वो 24 आवर्स का पूरा सर्कल होना चाहिए।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, दैट इज द लिरिकल जीनियस of dash can be expressed in poems like Ode to the West Wind, To a Skylark and Alastor. सिंपल में ये क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है बट द वे ऑफ फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। इसमें मैं सिंपल वर्ड में बता दूं कि ये सारे वर्ड्स को किसने लिखा है। सो द आंसर इज पीबी शेली, पर्सी बायशी शेली। सो the lyrical genius of Percy Bysshe Shelley can be expressed in poems like Ode to the West Wind, To a Skylark and Alastor. ठीक है। So now coming to the question number 37, that is who is being referred to in the lines from Middlemarch? A fine girl who married a sickly clergyman, old enough to be her father, and in a little more than a year after his death, gave up her estate to marry his cousin, young enough to have been his son, with no property and no well-born. So ये जो लाइन्स हैं ये किसके लिए कही गई हैं? मिडिल मार्च, मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में मिडिल मार्च के बारे में कि इसे जॉर्ज इलियट ने लिखा था एंड इट वाज सेट इन अ फिक्शनल टाउन दैट इज मिडलैंड में ये सेट हुआ था। ये अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो मैंने उसमें प्रॉपर एक स्लाइड डाल रखा है मिडिल मार्च के बारे में। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिडिल मार्च को जॉर्ज इलियट ने लिखा था एंड एक फिक्शनल टाउन की कहानी है दैट इज मिडलैंड। सो इसमें ये जो लाइंस कही गई हैं वो किसके लिए कही गई हैं? सो ये लाइंस कही गई हैं डोरोथिया के लिए, ठीक है। एंड क्यों कही गई हैं? बिकॉज डोरोथिया जो होती है ना वो बहुत वेल्दी होती हैं, बहुत रिच होती हैं, बट वो ना कभी अपने जो उनका जो वेल्थ है कभी वो उसको उसका शो ऑफ नहीं करती है। एंड वो क्या करती है, वो एक बहुत ही ओल्ड सिकली क्लर्की मैन से वो शादी कर लेती है एंड उसकी डेथ के बाद वो क्या करती है, वो उसके कजन से भी लास्ट में वो शादी कर लेती है। सो दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ दिस वर्क दैट इज मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, दैट इज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट वर्ड्सवर्थ and Coleridge protest against the dash poetry of the 18th century। तो रोमांटिक मूवमेंट हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो वो किस पोएट्री के अगेंस्ट थे? वो क्या वो नियो क्लासिकल के अगेंस्ट थे, क्या वो रोमांटिक के अगेंस्ट थे, क्या वो क्लासिकल या फिर प्यूरिटन के अगेंस्ट थे? सो द आंसर इज नियो क्लासिकल, यानी कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज they were just against the neoclassical poetry. So the answer is neoclassical। मैं फिर से बता रही हूँ, the founder of the romantic movements Wordsworth and Coleridge protest against the neoclassical poetry of the 18th century। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, that is the main motifs of the poem Sailing to Byzantium by W.B. Yeats include dash and dash। तो ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. यीट्स, इसमें क्या इंक्लूड है? क्या वो एनिमल फायर एंड अर्थ इंक्लूड है, क्या बर्ड सिंगिंग गोल्ड एंड फायर इंक्लूड है, या फिर अर्थ रिवर सेलिंग बोट्स इंक्लूड है, या फिर बर्ड्स सिल्वर एंड हीट इंक्लूड है? सो बिफोर कमिंग टू दिस आंसर आई एम जस्ट गोइंग टू just recite the poem Sailing to Byzantium by W.B. Yeats। मैंने यहाँ पे पोएम को डाल रखा है स्लाइड में, तो मैं जस्ट पढ़ रही हूँ तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। सो that is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the tree, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, commend all summer long, caught all summer long, whatever is begotten, born and dies, caught in the sensual music all neglect, monuments of unaging intellect. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hand and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress, nor is there singing school but study, monuments of his own magnificence,
And therefore I have sailed the sea and come to the holy city of Byzantium. O sages standing in God's holy fire, and in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, train in a gyre, and be the singing master of my soul, consume my heart away, sick with desire, and fastened with a dying animal, it knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Once out of nature, I shall never take my bodily from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. So मैंने ये पोयम को पढ़ा, that is Sailing to Byzantium by W.B. Yeats. मैंने इस पोयम को प्रॉपर पढ़ा एंड मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं कुछ वर्ड्स को, यानी कि वर्ड्स में मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। मैंने अंडरलाइन किया है गोल्ड में एंड मैंने अंडरलाइन किया है फायर में। सो इस पोयम में इन तीन चीजों का जिक्र है, दैट इज bird singing, fire, and gold. So the answer of this question is option number 2, that is bird singing, gold, and fire. The main motive of this poem, Sailing to Byzantium by W.B. Yeats, include bird singing, gold, and fire. Relating about the importance of true love in Middlemarch, who quotes the following lines? True love for a good book is a great thing, Suzanne. It shapes many a rough fellow. ये जो लाइन्स हैं ये किसने कोट किया है मिडिल मार्च में? ये जो लाइन्स है ये किसने कोट किया है? सो मिडिल मार्च के बारे में मैंने इससे पहले बता रखा है कि इट वाज रिटन बाय जॉर्ज एलियट एंड सेट इन द फिक्शनल टाउन मिडलैंड, एंड इस लाइन को कोट किया है कैलिब गार्थ ने, दैट इज कैलिब गार्थ ने कोट किया इस लाइन को। सो द आंसर इज कैलिब गार्थ, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा कैलिब गार्थ। एंड मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ बिकॉज, ठीक है। सो इस लाइन को कोट किया है कैलिब गार्थ ने, इस लाइन को कोट किया है कैलिब गार्थ ने। सो अब मैं क्या करती हूँ, जस्ट हम लोग एक जो हमारा काम है जस्ट एक क्विक रिवीजन करना, तो हम लोग जस्ट एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट लॉरिएट इन 1850, यानी कि 1850 में वर्ड्सवर्थ को किसने सक्सीड किया था एज अ पोएट लॉरिएट? देन द आंसर इज अल्फ्रेड टेनिसन, यानी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, who was a Victorian poet and Wordsworth was a romantic poet. So which poem of T.S. Eliot was made from the unused material of Murder in Cathedral? तो Murder in Cathedral के unused material से कौन सा poem बना था T.S. Eliot का? So it was Bert Norton, and Bert Norton was the first poem of Eliot written in 4 quartets. And Murder in Cathedral के बारे में मैंने क्या बताया कि it was a verse drama by T.S. Eliot. So the experience in prelude begins in sensation and ends in thoughts. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि prelude 1850 में लिखा गया था in 14 books, and ये विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 months के बाद पब्लिश किया गया था by his wife मैरी हचिंसन। and prelude एक जस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, वर्ड्सवर्थ की लाइफ से पूरा डील करता है। सो एंड व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज ओनली 28 years, he just started on working on prelude, यानी कि 1798 में उन्होंने prelude को स्टार्ट किया था, and it took his entire life to complete the work, and the irony is that कि उनके डेथ के बाद उनका ये वर्क पब्लिश होता है by his wife, that is मैरी हचिंसन। सो अब हम आते दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज द सेंट्रल थीम इन द नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर आर रिलीजन एंड मोरालिटी। तो थॉमस हार्डी ने लिखा था ये नॉवेल
Jude the Obscure in 1895 and it was the last completed work of Thomas Hardy. याद रखिएगा, last completed work of, ठीक है। आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं ना, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर जस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग जस्ट मैं बता रही हूँ तो लिखते जाइए साथ साथ में, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने बताया 3 यूनिटीज, 3 क्लासिकल यूनिटीज, दैट इज टाइम, प्लेस एंड एक्शन। एंड मैंने बताया कि 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट प्लेस होना चाहिए एंड वन प्रिंसिपल एक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो टाइम, प्लेस एंड एक्शन। एंड टेम्पेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि इट इज मतलब वो कहा जाता है कि लास्ट प्ले था विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये द टेम्पेस्ट है, कि माना जाता है कि ये जो द टेम्पेस्ट है इट वाज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क एंड एलास्टर को किसने लिखा था, तो ही वाज पीबी शेली। द आंसर इज पीबी शेली। सो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है फ्रॉम मिडिल मार्च, कहा गया है, इसमें पूछा गया कि ये लाइन किसके लिए कहा गया है। अ फाइन गर्ल who married a sickly clergyman old enough to be her father and in a little more than a year after his death gave up her estate to marry his cousin young enough to have been his son with no property and no well born. So the lines are just given for referred to Dorothea. इस वर्क की जो मेन लीड है डोरोथिया, वो ये लाइंस उसके लिए कही गई हैं। So the answer is Dorothea. And the founder of Romantic movement, Wordsworth and Coleridge protest against the neoclassical poetry of the 18th century. So now अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय यीट्स इंक्लूड बर्ड सिंगिंग, गोल्ड एंड फायर। मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ, ये जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है ना, इसके एक एक लाइंस को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। एंड इन माई कोर्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द होल पोएम, बट मैं बता दूं ये यूट्यूब वाले जो सेशन है, मैं इसमें सिर्फ यही बता सकती हूँ कि सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है, इसमें ना आप लोगों को इस पोएम का एक एक लाइन को कैच करना है, इस पोएम के एक एक लाइन को कैच करना है। सो क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये सेलिंग टू बाइजेंटियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, ठीक है। हमारे सिलेबस में तो ये है ही, बट ये W.B. यीट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इससे एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में कंफर्म है कि पूछना ही पूछना है। सो इस पोएम पे आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज ये जो लाइन्स है, कोट है, दैट इज ट्रू लव फॉर अ गुड वुमन इज अ ग्रेट थिंग सुजैन, इट शेप्स मेनी अ रफ फेलो। ये लाइन्स कहा है कैलेब गार्टने इन मिडिल मार्च, विच वाज रिटन बाय जॉर्ज एलियट। एंड जॉर्ज एलियट का नाम क्या था, मैरी एन इवांस। शी वॉज अ लेडी एंड उन्होंने अपने नाम को चेंज किया था, लाइक उन्होंने जॉर्ज एलियट अपना नाम रखा था, बट उनका रियल नेम है मैरी एन इवांस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारा ये कोर्स 22 से स्टार्ट होने वाला है। सो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं कराया है, जस्ट हरी अप, ताकि आपकी कुछ भी कोर्स की कुछ डिटेल्स ना छूटे। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉल ऑन द गिवन नंबर। That's all for today. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.